Yeah, no worries, ma'am. Kind of grooming Delhi University is giving to the youngsters. So you should Yes, share ma'am. any such opportunity, internship, society representation which you have got, in past years. Number three, Sure, ma'am. yeah, you should definitely code about your work experience also. Number three, your family and your siblings. Yeah, And last but not the least, your aspirations. yeah, sure. So I've done my schooling from St. Thomas's, that's in Mandirmar, and even my 12th has been from the same school. It's been 14 years I spent in that school. So my 10th score was, it was the CGPA system at that time, and it was 9.6 CGPA. Then going ahead with my 12th scores, my best four score was 92%. Then I got into a Delhi University College, which is Guru Gobind Singh College of Commerce, and got a grade point of 6.8. And talking about the extracurricular activities in college and school, I was an active participant in many inter-school competitions, such as there's this one competition which happens every year in Golden Jubilee. That's the TAFS, the Air Force, Bal Bharti Air Force School, Golden Jubilee. It's the media splash competition which happens there. So there I got the second prize there, and then moving ahead with the college curriculum activities, I served a society called the National Service Scheme as a vice president for a year and an executive member for 3 years. And in my final year, I was elected as the vice president there. And then soon after my college ended, that was in July, I got the result. In August, I joined my job, it's a digital marketing agency in Gurgaon and also based out of UK. And I've been constantly working with them, and I'd say the quality and the efficiency of work that I've proved to them that got me to back this position of a product manager as soon like after a year experience of one. Thank you very much for sharing all the details. And Yeah, I'll sure. be connecting with you once. Yeah, hi Chitwan. Hi, sir. Yeah, Hope you're Chitwan, doing great. I'm good. Have you given any entrance exam like CAT, MET, I appeared for CAT last year, but and how much is for? it was 58. And you didn't again? Yes, I was planning to appear for CAT again this year. Okay. Yeah. And in which specialization course you are planning for MBA, doing MBA? It's in marketing. Like HR, finance, marketing. Okay, MBA in marketing. Yeah. Anywhere in India, or you are also planning for abroad as well? So if it's in India, I'll prefer it to be only in Delhi. And if not Delhi, then abroad. Okay. And abroad, maybe there are two broad options. It's UK and Canada. Okay. Right. So देखिए चिकन अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी एमबीए के लिए तो बेसिकली इंडिया से फार बेटर देन अब्रोड है, राइट, हाँ जी। एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो अगर आप अपनी प्रेफरेंस लेके चल रहे हैं यूके और कनाडा, राइट, सो यूके और कनाडा के अंदर आपका नंबर 1 आता है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, सेकंड नंबर पे आपका आएगा कनाडा, राइट। वो क्यों, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जो यूके के अंदर है आपका, यूके के अंदर आपका स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, मीन्स आपको वहां पे जाने के लिए कोई ब्लॉक अमाउंट नहीं खुलवाना पड़ता यूके के लिए, राइट। अगर आप कनाडा प्लान करते हैं तो कनाडा में सॉरी ब्लॉक अमाउंट एज इन, देखिए अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री को आपको लिविंग एक्सपेंस के लिए अपने अमाउंट शो करना पड़ता है वहां के बैंक के अकाउंट के अंदर। ओके, ठीक है, राइट। सो कनाडा के अंदर अगर आप प्लान करें तो कनाडा में आपको ब्लॉक अमाउंट खुलवाना पड़ता है जो कि 6.5 लाख रुपीस का होता है, जो कि वहां के अकाउंट के अंदर आपका ये 6.5 लाख रुपीस फ्रीज होता है, जिसको आप हर मंथ अपना विड्रॉ करवा सकते हैं एज अ लिविंग एक्सपेंस के लिए।
राइट? ओके। क्योंकि कनाडा हमेशा क्वेश्चन ये रेज करता है कि बच्चा यहाँ पढ़ने आ जाएगा बट वो अपना लिविंग एक्सपेंस कैसे निकालेगा, हाँ जी। राइट? तो इसके अंदर यूके में ऐसा कुछ नहीं है। और आपके 12th में इंग्लिश में कितने स्कोर थे चितवन? 95। 95, डेट्स ग्रेट। सो यूके के अंदर में आपका जो आइलेट्स का एग्जाम होता है वो भी वे ऑफ हो जाएगा। अगर आपके 75 से अबव है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 12th में, तो आपका जो आइलेट्स का एग्जाम है वो वे ऑफ रहता है यूके के लिए। और इसमें जस्ट ओके। आपको एक यूके वीआई का इंटरव्यू होता है जो कि बेसिकली ब्रिटिश एम्बेसी के लोग लेते हैं आपको वहां के लिए, राइट? अगर हाँ वो आप जी। देते हैं तो इसमें आपको यूथ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है इस बिहाफ पे। एंड ओके। सेकंड थिंग, यूके बेटर क्यों है? क्योंकि अगर यूके की मैं बात करता हूँ तो यूके में आपका जो अर्निंग है वो काफी ज्यादा है अपार्ट फ्रॉम कनाडा। क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम की बात करो तो यूके के अंदर आप 25 पाउंड्स पर और एज अ पार्ट टाइम अर्न करते हो, राइट? जो कि बेसिकली बिल्कुल एक एवरेज लाइक हमारे यहाँ पे इंडिया में एज अ लेबर, और वहां के हिसाब से 25 पाउंड। तो उस बिहार पे एक मिनिमम अनस्किल पीपल को भी 25 पाउंड्स वहां पे मिलते हैं पार्ट टाइम 1 आवर के लिए, राइट? हाँ जी। और डेफिनेटली यू आर ग्रेजुएट, सो आप 25 से लेके 45 तक पर और अपना वहां पे अर्न कर सकते हैं। लेकिन कनाडा के अंदर आपका 13 कैनेडियन डॉलर रहता है जो कि काफी कम है, हाँ जी। राइट? एंड यूके के अंदर 20 और अभी काम कर सकते हैं, लेकिन कनाडा में आपको वहां के बैंक अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है, प्लस अपना यहाँ पे इंडिया का पेपर पे वर्क पे आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास पैसा का सोर्स ऑफ इनकम कितनी है कि आप वहाँ पे ट्यूशन फीस वगैरह पे कर सकते हो, अनटिल अनलेस वहाँ पे जाके आप कंट्री पे बर्डन ना पड़ो। ओके, ठीक है। और यूके की मैं बात करता हूँ तो यूके के अंदर आपका जो प्रोग्राम रहता है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स, ओके। सो हाँ देखो जी। यूके के अंदर आपका डायरेक्टली जो मास्टर्स के लिए प्रोग्राम रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वहां पे आपको मिलता है 1+1 प्रोग्राम। 1+1 मीन्स 1 year of your study plus 1 year of your integrated placement in multinational company, right? तो वहां पे आपका ये रहता है। और जो आपको वीजा मिलेगा यूके के लिए वो आपको टोटल 4 years का वीजा मिलता है। मीन्स 2 years ऑफ योर स्टडी पर्पस, जिसमें आप 1 year की अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, देन 1 year की आप अपनी इंटर्नशिप कर लेते हैं, राइट? और 2 हाँ years जी। का आपको स्टे बैक वीजा मिलता है जिसमें आप वहां पे एज अ वर्क अपना ले सकते हैं। प्लेसमेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो प्लेसमेंट के लिए आपको मच टाइम मिल जाता है। और वहां पे जब आप वर्क करते हैं तो अल्टीमेटली 4 year का वीजा है, तो 4 साल आप वहां वर्क करने के बाद 1 साल वर्क एक्सपीरियंस वीजा आपका लेने के बाद आप वहां पे पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ओके, राइट? बट अगर मैं कनाडा ठीक की है। बात करता हूँ तो कनाडा के लिए आपको पहले वहां पे 1 साल डिप्लोमा करना पड़ेगा। क्योंकि उनका कुछ इयर्स ऑफ एजुकेशन है जो यस, 14 इयर्स वो आपका कंसिडर जो करते हैं। वहाँ 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड रहती है। बट आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपने बीकॉम करा हुआ है जो कि 3 इयर्स का होता है, तो वहाँ पे आपको 1 ईयर का डिप्लोमा करना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पे एमबीए करने के लिए। तो ओके। यूके इसलिए काफी अच्छा नहीं है अपार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, कनाडा इसलिए अच्छा नहीं है इन फ्रंट ऑफ यूके क्योंकि वहाँ पे इतने सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और इवन उसमें आपको अपना आइलेट्स का एग्जाम देना पड़ेगा कनाडा के लिए, जिसमें आपको मिनिमम 6.5 बैंड ईच में लेके आने पड़ेंगे। ओके। उसकी कॉस्टिंग अबाउट नियर अबाउट आइलेट्स का जो पेपर होगा आपका 10,000 रुपए या 12,000 रुपए के आसपास का होगा। उसके लिए अंदर आपको कोचिंग भी लेनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली अगर स्कोर अच्छा नहीं आया तो आपका कनाडा जाने का चांसेस कम हो सकते हैं। बट यूके के अंदर आपको ये सब चीजें नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। और यूके के अंदर प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, आपने रसल ग्रुप है जिसके अंदर वर्ल्ड की टॉप बेस्ट 24 यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें आप अपनी एनी 4 to 5 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जहाँ पे अपना टारगेट कर रहे हैं आप, राइट? हाँ और जी। जो मिनिमम इनकी ट्यूशन फीस आती है वो अराउंड 12 लाख to 24 लाख के कॉलेजेस उसके अंदर रहते हैं। हाँ जी। एंड और इनमें सर इसमें स्कॉलरशिप्स भी होती है? हाँ, इन ये एक्चुअल फीस मैंने बताई है। इसमें स्कॉलरशिप डिपेंड करता है ऑन योर प्रोफाइल की। आपकी जो प्रोफाइल जाएगी कॉलेज के पास जो बन के, जिसमें आपकी हाँ प्रोफाइल जी। हम बनाते हैं जब, तो उसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सब चीज इंक्लूड रहती हैं। और उसमें आपके एकेडमिक्स में आपने क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने क्या परफॉर्म किया हुआ है, स्कूलिंग कहाँ से आपकी है, ये सब चीजें वहां पे जब जाती हैं तो उसके बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एंड ड्यू टू कोविड राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि कॉलेजेस वाले बल्क नंबर ऑफ स्कॉलरशिप हाई एंड प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? सो जब मान लो अगर आपकी ट्यूशन फीस 15 लाख रुपीस है 1 ईयर की, तो उस पर अगर आपको 3 to 4 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप मिलती है, अल्टीमेटली वो 8, 9, 10, 11 के अंदर खत्म हो जाता है, राइट? वो हाँ ज्यादा जी। स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपको,
मैक्सिमम आपकी 3 लाख रुपए तो मैक्सिमम मिनिमम है ही है स्कॉलरशिप आपकी, राइट? ये मैक्सिमम टू 5 लाख रुपए तक जाएगी आप। ओके, तो तो ये अगर मैं इंडिया की स्कॉलरशिप का बात जो करता हूँ, अमाउंट होता है कि हमें कंफर्म कब होता है सर? ये आपको आफ्टर ऑफर लेटर के ऊपर ऑफर मेंशन होता आने है। के बाद? ये आपको ऑफर, क्योंकि आपके पास जब अब्रॉड की बात करता हूँ तो अब्रॉड के अंदर आपको 2 ऑफर लेटर निकलते हैं। एक कंडीशनल हाँ ऑफर जी, लेटर निकलता है, एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर निकलता है, राइट? कंडीशनल हाँ ऑफर जी, लेटर में क्या होता है, उसमें आपको कंडीशन ये रहती है कि मान लो आपका ट्यूशन फीस आ गई है, उस पे आपको मेंशन होगा कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है, राइट? एंड स्कॉलरशिप के बाद उनका एक अमाउंट होता है कि आपको 1 लाख रुपीस का अमाउंट वहां पे आपको एज अ ट्यूशन अपना एडमिशन कंफर्म के लिए अपना वहां पे पे करना है, राइट? Once you pay that amount, then your unconditional will be released, ओके सर, right? तो अनकंडीशनल ठीक के है, रिलीज होने के बाद ही आगे आपका वीजा के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। हो- आपका जो फ्लाइट का एक्सपेंस होता है, आप कभी भी ट्रेवल करते हैं वापसी इंडिया के लिए, तो आपका जो फ्लाइट का एक्सपेंस रहेगा वो 50% डायरेक्ट आपको वे ऑफ मिलेगा आपकी टिकट्स के अंदर, ओके सर, एज अ ठीक है, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, राइट? और प्लस अगर मैं बात करता हूँ यूके के अंदर जब जाते हैं पढ़ने, तो वहां पे आप जाके ब्रेक इवन कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अब्रॉड पढ़ रहे हैं तो आपको स्कूलिंग जो आपकी रह रही है वहां पे 1 ईयर की रह रही है, राइट? हाँ जी, और अमाउंट आपको स्कॉलरशिप के बाद वही 12 या 15 लाख रुपए का लग रहा है, एक एक्चुअल में बात करता हूँ तो। हाँ जी, और इसके अलावा मैं बात करता हूँ इंडिया की, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, तो इंडिया में आपकी जो एमबीए रहती है वो 2 इयर्स की रहती है, हाँ जी, और अल्टीमेटली राइट, जिस कंपनीज में आप काम करेंगे वो मल्टीनेशनल कंपनी सारी बाहर की ही है। और सबसे थर्ड थिंग, आप यहाँ पे 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आप अब्रॉड में जाके वहां का एक्सपोजर और वहां का नेटवर्किंग देख के अपना 1 साल के अंदर ही अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद आप वहां पे पीआर के लिए एलिजिबल रह सकते हैं। हाँ जी, तो ये डिफरेंस है इंडिया और यूके के बीच में। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट आपको जब ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें आपको 1 ईयर की इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट लिखी होती है, जैसे कि आपका इंडिया में इंटर्नशिप होता है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑफर लेटर मिलता है प्लेसमेंट का भी आपको, जिसमें आप कंपनी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो और वहां पे आप अपना जॉब ले सकते हो 1 साल, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप 1 साल इन्वेस्ट कर लेते हो तो अल्टीमेटली वो कंपनी आपको पीपीओ प्रोवाइड करती है, नहीं तो हाँ जी, आपकी और कंपनी से प्लेसमेंट वहां पे आपको कैंपस के अंदर ही प्लेसमेंट सेल होता है, जो कि आपको पार्ट टाइम की प्लेसमेंट भी दिलवाता है। जैसे आप यहाँ से इंडिया से वहां पे गए, विद इन हाँ 1 जी, मंथ के अंदर अपना रिज्यूम वगैरह देते हो, और इन कैंपस और आउट कैंपस दोनों जगह पे फैसिलिटी रहती है, आप कहाँ पे अपना एज पर यूर स्किल अपना काम देख रहे हो पार्ट टाइम करने की। तो सेम एज इट इज वहां पे अपने इंटर्नशिप मिली आपको, वो खत्म हुई तो अपना प्लेसमेंट भी आपको वहां पे मिलती है, और वंस यू गेट द प्लेसमेंट देन आपका जो वीजा है आपको वहां पे कभी वापसी इंडिया आने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे जो एलिजाबेथ का रूल है उसके बिहाफ पे एक 2.5 लाख रुपीस पर मंथ आप कहीं नहीं जाने देंगे, हाँ जी। राइट? तो एंड ये सर, डिफरेंस इज है। इट कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो वाइडली अवेलेबल है यूके में? बिकॉज आई हर्ड कि अब यस यस थोड़ा यस। कम हो गया है, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, एक्सपोजर इसके बढ़ गया है ब्रेक्सिट के बाद, तो ये मतलब जॉब कम हो गई है मिलनी यूके में। नहीं, अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ इसके इशू के ऊपर, तो इस इशू में क्या बेनिफिट आया, ये आया क्योंकि पहले आपको पता होगा यूके के अंदर आपका, पहले यूके इतना फेमस क्यों नहीं था, क्योंकि यूके के अंदर जब आप स्टडी करने जाते थे तो आपको सिर्फ 6 मंथ का स्टे बैक देते थे वो, हाँ जी, राइट? लेकिन वहां के राइट, जो प्रेसिडेंट बीच में रहे थे उन्होंने अपना रिजाइन दिया था, तो उसके बिहाफ के बाद जब एक उन्होंने रूल निकाल के दिया था कि ब्रेक्सिट से अलग होने के बाद उन्होंने ये रूल निकाला था कि जो बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ने आएगा उसको हम जो वीजा देंगे वो स्टडी वीजा के बाद 2 साल का एक्सटेंडेड देंगे स्टे बैक पीरियड का, ताकि बच्चा उस बिहाफ में अपनी अच्छे से जॉब, और अगर वो पीआर के लिए आगे प्लान करता है तो उस टेन्योर के अंदर वो अपना कंफर्म रह सके, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कनाडा प्लान करते हो पीआर के लिए तो उसमें ही आपको 5 इयर्स वर्किंग आपको वहां पे रहना पड़ेगा, स्कूलिंग प्लस हाँ वर्किंग, जी, तभी आप हाँ कनाडा में जी, पीआर ले सकते हो। और सिंपल सी बात है, अगर आप कनाडा में पीआर के लिए प्लान करते हो तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे 3 इयर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, 2 years of MBA plus 1 year of your diploma, right? Then आपको 2 years का वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, then you are eligible for PR। बट कनाडा में यूके में बिल्कुल आपका चेंज है, यूके में आपको 1 ईयर की स्टडी करनी है और 3 ईयर आप वहाँ पे एज अ वर्क कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आपने इन्वेस्ट करा अपना 12 से 15 लाख रुपए अपनी स्टडी के ऊपर, वो आपने 1 मंथ के अंदर अंदर रिकवर कर लिया ना, ब्रेक इवन कर लिया, हाँ अब जी, बाकी नेक्स्ट 2 इयर्स तो आपने वहाँ पे अर्निंग ही करनी है ना, तो हाँ ये जी, हाँ बेनिफिट जी, है वहां पे। राइट, और जॉब्स की कभी भी वहां पे इंडियन गाइज के लिए जॉब्स की ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे इंडियन गाइज हमेशा हार्ड वर्किंग रहे हैं
और वो बेसिकली वहाँ के लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडियंस को इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम उनको नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि आपको अब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आप 8 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें या 12 घंटे आपसे कंपनी काम करवाई, राइट? वो आप कर भी हाँ रहे जी, हैं हाँ जी। बिना उनको कुछ कंप्लेनिंग किए। हम्म, बट अगर वहाँ के हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो अगर वहाँ पे आपका टाइम 10 to 5 है, तो वहाँ के हाँ लोग जी, 5 to 5 o'clock तक नहीं रुकते। वो कहते हैं हमारा टाइम खत्म हुआ, हमारा 10 to 5 तक काम था, हमने अपना किया, हम नहीं रुकेंगे, और वो अपना वहां से उठ के चले जाते हैं। बट एक हाँ इंडियन जी, गाय को कहो कि आपको 2 घंटे और रुकना है, तो वो हैप्पीली वहां पे रुक के काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए वहां पे इंडियन गाइस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और वहां पे जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपको वीकली मिलते हैं। हम्म, अनमोल सर,